Good morning, everybody, and once again, this is Deep Kajbe, and you are watching again the show that is Meet Your Fund Manager. आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है जिन्होंने पूरे कैमरा को खड़ा किया है. And believe me, you will going to enjoy the today's show amazingly because आज के शो में 7 इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये 7 इंपॉर्टेंट चीजें आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये 7 चीजें क्या है? तो इस 7 चीजों में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है सर, इन्वेस्टमेंट में थ्योरी ऑफ मोमेंटम क्या होता है ये आपको समझने के लिए मिलेगा. और फियर और परसेप्शन की रिस्क को कैसे मैनेज करना ये आपको समझने के लिए मिलेगा. मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन भी निवेश सर हमको बताने वाला है, ये आपको समझने के लिए मिलेगा. आपको ह्यूमन बिहेवियर समझेगा, आपको पैटर्न ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होता है ये सीखने के लिए मिलेगा आज निमेश सर से. एट द सेम टाइम who is better decision maker, either male or female, ये समझने के लिए मिलेगा. So it will be quite interesting today. At the same time, what is the temptation, how it actually it gives a tempting to the investing into the market, वो सीखने के लिए मिलेगा. And what is the value investing, that is very important aspect, and probably today would be the amazing session with the Nimesh sir. So thank you Nimesh sir for coming here today. Let me introduce you with the people that Mr. Nimesh is the head of the equities in Canara Robeco Mutual Fund. Since 2008, he is there in the capital market and with Canara as well. He is having the all 2 decades of experience in the capital market. He worked on and guided the team on providing strategy on the various equity funds. He is a keen follower of behavioral finance, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. And he has developed a lot of tools to process which can help out the people to make an investment per se in their own portfolios in their life. He also conducted a lot of workshops wherein he presented the concept of behavioral finance for the investor और financial advisors के भी काफी सारा काम करते हैं. इनके बहुत सारे आर्टिकल मैंने खुद ने पढ़े and I'm quite impressed. So you certainly will going to enjoy today's session. Thank you very much Nimesh sir for joining here on here with us sir, on Imperial Money. Thank you very much, Deep ji. This is my pleasure to join you on this channel. I know this is a fantastic initiative that you have started very recently in the last say few months, and especially very helpful during pandemic to start a communication between investors and fund managers. I think, I hope that on this platform, I'm able to add value to you and your listeners. Thank you sir, thank you very much. So sir, let's start with, आपने एक बड़ा ही different concept generate किया जिसका मैगजीन आप normally कैनरा निकालता है, कैनरा रोबेको निकालता है, which called as a stoic investor. तो ये stoic investor की terminology आपको कहाँ से सूझी, या फिर what is the significance for the common investor of regarding the stoic investor magazine? जैसे कि आप जानते हैं दीप जी के मेरा इंटरेस्ट बिहेवियरल फाइनेंस की तरफ काफी रहा है जी. एंड बिहेवियरल फाइनेंस इज अ फील्ड जहाँ पे आपकी जो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है उसको साइकोलॉजी के साथ कंबाइन किया जाता है. तो दिस इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड साइकोलॉजी. अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट मेनी इयर्स फाइनेंस पे सबका काफी ध्यान गया है, बट साइकोलॉजी की तरफ ध्यान कम रहा है. Right. अगर हम देखें जो बड़े इन्वेस्टर्स रहे हैं हिस्टोरिकल एज वेल एज प्रेजेंट, उनका जो अपने टेम्परामेंट पे अपनी इमोशंस पे जो कंट्रोल है ना, दैट इज देयर. अब जो हम बेंजामिन ग्रैहम की बुक पढ़ते हैं, जो अब वो एक बाइबल की तरह है फॉर फंडामेंटल एनालिस्ट, फॉर फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड इन्वेस्टर्स. बट इन दैट इंट्रोडक्शन 1950 में बेंजामिन ग्रैहम ने इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक में लिखा है कि वी विल टॉक अ लॉट अबाउट साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स इन दिस बुक बिकॉज द चीफ एनिमी of an investor is likely to be himself because he is driven by emotions. तो जिसका टेम्परामेंट, जिसके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, वो बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं. दे कैन कीप अवे फियर, ग्रीड, एवरीथिंग. नाउ तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक न्यूज़लेटर जरूरी है टू टेल पीपल द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन डिसीजन मेकिंग, और उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, उसको सिंपल बनाना है दैट एवरीबॉडी कैन फॉलो. तो हर स्टोइक इन्वेस्टर में आई डिसाइडेड आई पुट सम आइडियाज और सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कि आप इस तरह से अपने डिसीजंस बेटर कर सकते हैं. एंड जब नाम का सिलेक्शन हो रहा था तब सोच रहे थे कि हु इज अ पर्सन जो अपने इमोशनल बैलेंस को ठीक रखता है, ज्यादा एक्सट्रीम इमोशंस नहीं बताता, और अ पर्सन हु कैन लाइक बी रैशनल, बी रेजिलिएंट. तो stoic is a word that came about a person who doesn't react with extreme emotions. Wow. And doesn't take bad decisions under pressure. He is able to handle pressure very well. So socha कि this is a more appropriate name for the newsletter and what I want to convey to people.
वाह, अमेजिंग सर, ग्रेट, सुपर ग्रेट सर। अभी भी मोमेंटम चल रहा है एंड लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग इनटू द मोमेंटम ट्रैप. Normally the investors are coming into either maximum time the people are coming to the momentum trap and then come across कि something has been happened. So how to play with the common investor कि ये momentum trap को कैसे देखना है, उसकी negativity को कैसे handle करना है, ताकि उनको एक negative feeling ना मिले. So what is your take on theory of momentum, which with your perspective? Sure. Very interesting question, Deep ji. And momentum is something जो अभी लास्ट 1 ईयर से काफी डिस्कशन में भी रहा है. A lot of, I think एक दो फंड भी लॉन्च हुए हैं मोमेंटम बेस्ड. सो देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स. एक हम पहले पर्सपेक्टिव देखते हैं कि मोमेंटम क्यों बनता है किसी भी स्टॉक प्राइस या एसेट प्राइस में. मोमेंटम क्यों बनता है, एंड सेकंड हम देखेंगे कि हाउ इन्वेस्टर्स शुड लुक एट इट एंड हैंडल इट. तो मोमेंटम इसलिए बनता है क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर न्यूज या अनाउंसमेंट आती है तो पहले एक अंडर रिएक्शन होता है उसमें, तो इतनी वैल्यू नहीं देते. फिर धीरे धीरे एज मोर पीपल कम इन, वो स्टॉक प्राइस उसमें से अगर गुड न्यूज आई है तो स्टॉक प्राइस ऊपर चलना शुरू होती है. फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मोर पीपल ज्वाइन इन, एंड एक तरह से बाद में वो कंपनी को लोग ये समझते हैं कि दिस इज द बेस्ट कंपनी टू इन्वेस्ट इन. फिर वैल्यूएशन कुछ भी हो सकता है उसका, तो देन इट गोज इनटू ओवर रिएक्शन. पहले अंडर रिएक्शन से लेके ओवर रिएक्शन तक की ये जो जर्नी है, ये है मोमेंटम. और ये क्यों बनता है, क्योंकि इस पे अगेन 2-3 डिफरेंट थियरीज हैं और सारी बिहेवियरल थियरीज हैं. एकेडमिक्स जो फाइनेंशियल एकेडमिक्स है उनके पास मोमेंटम का कोई रीजन नहीं है. सिर्फ बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरल फाइनेंस वालों के पास रीजंस हैं या थियरीज हैं जिससे ये जस्टिफाई हो सकता है. एक देयर इज अ बायस कॉल्ड कंजर्वेटिज्म बायस. अगर किसी कंपनी ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे दे दिए या कुछ अच्छा अनाउंसमेंट आया उसमें, तो इमीडिएटली एनालिस्ट फंड मैनेजर उसके पीछे नहीं भागते. वो ये सोचते हैं कि मे बी दिस इज वन ऑफ, हम थोड़ा वेट करेंगे देखने के लिए कि वेदर दिस कंपनी कंटिन्यूज टू डू वेल. तो एक कंजर्वेटिव अप्रोच है हमारी कि तुरंत सारा पैसा उसमें नहीं लगाएंगे. तो ऑटोमेटिकली अगर द कंपनी इज रियली गुड एंड दिस पॉजिटिव न्यूज और मोमेंटम कंटिन्यूज, तो मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स कीप कमिंग इन और शेयर प्राइस जो है वो बढ़ते जाता है. और फिर एज आई सेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसे तो कभी बेचना ही नहीं है, एंड देन इट रीचेज ओवर वैल्यूएशन ऑल्सो. द सेकेंड थियरी इसमें ये भी है जो स्मॉल कैप्स को ज्यादा लगती है, कि कुछ कंपनीज में इंफॉर्मेशन स्लोली फैलती है विद इन्वेस्टर्स. तो काफी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें इन्वेस्टर्स ट्रैक नहीं करते, जो मीडिया में नहीं आते उनके नाम. उन कंपनीज के अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो वो कुछ इन्वेस्टर्स जिनका वहां पे ध्यान जाता है वो उसमें लेना शुरू करते हैं कंपनीज में. देन स्लोली मोर एंड मोर पीपल कम टू नो अबाउट इट, एंड फाइनली जब वो मीडिया में या सर्किट लेवल लग जाता है तब वो न्यूज में आ जाते हैं. तो देन यू सी इट मूविंग अप. सो ये दूसरी मोमेंटम की थियरी है. नाउ ट्रेडर्स और जो क्वांट इन्वेस्टर्स हैं वो मोमेंटम को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं. फंडामेंटल जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक शायद मोमेंटम को यूज नहीं कर पाते, क्योंकि कैसे जस्टिफाई करें, जस्ट बिकॉज प्राइस ऊपर जा रहा है तो मैं ले लूं, वो जस्टिफाई नहीं हो सकता. एंड सेकंड, जब प्राइस गिर रही होती है तब वो उसे फंडामेंटल रीजन से जस्टिफाई करते रहते हैं कि क्यों गिर रही है और रुक जाएगी वहां पे. रुक जाते हैं दोनों तरफ. देयर इज अ प्रॉब्लम. तो आइडियली व्हाट आई सजेस्ट, फंडामेंटल इन्वेस्टर्स आल्सो मोमेंटम पे ध्यान दें. अगर कुछ कंपनी, देयर इज अ सर्टेन रिसर्च डन बाय जगदीश एंड टिटमैन, इन दोनों ने ये 1993 पब्लिश की थी रिसर्च. उन्होंने क्या कहा था कि कुछ कंपनीज जो 6 मंथ्स के पॉजिटिव मोमेंटम में रहती हैं, दे कंटिन्यू फॉर अनदर 6 मंथ्स. सो दैट इज एज अ बास्केट ऑफ दीज कंपनीज. तो फॉर अ इन्वेस्टर अगर वो एक स्क्रीनर रन करें कि दीज आर द कंपनीज व्हिच आर शोइंग गुड मोमेंटम, एंड ओनली इफ मेरे प्रोसेस में और मेरी स्ट्रेटजी में वो कंपनीज फिट होती हैं, देन आई विल टेक इट एज अ सजेशन. कि कोई और एक एनालिस्ट बैठा है आपकी टेबल पे, उसने आपको सजेस्ट किया, दिस इज द मोमेंटम एनालिस्ट, वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि सर ये कंपनीज आप देख लीजिए, दीज लुक इंटरेस्टिंग. और अगर उनमें से बाय डिगिंग डीपर अगर मुझे पता चले अरे हाँ इसमें तो देयर इज अ पॉजिटिव न्यूज, अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, तो उन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं इफ दे फिट इनटू आवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी. द सेकंड पार्ट इज मेनी अ टाइम्स कि कुछ नेगेटिव न्यूज आते रहते हैं और हम
because of another problem called cognitive dissonance. Right. उसमें ऐसा होता है कि हम rationalize करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, ये नेगेटिव नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा पॉजिटिव है. Many a times मैंने इन्वेस्टर्स को देखा है कि कुछ एक रीजन से अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कुछ टाइम बाद अगर वो रीजन चला गया बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव डेवलपमेंट, फिर भी उसे वो पकड़े रखते हैं क्योंकि वो लॉस में है, क्योंकि वो नीचे जा रही है कंपनी. सन कॉस्ट फैलेसी के सर, सन कॉस्ट फैलेसी है क्या? हाँ, सन कॉस्ट फैलेसी. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो इसलिए क्या होता है कि फिर जो उसका मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड की तरफ होता है, क्योंकि जैसे ही वो कंपनी बाउंस करती है कुछ नए सेलर आ जाते हैं बेचने के लिए उसे, तो इट क्रिएट्स अ डाउनवर्ड ड्रिफ्ट. तो आई बिलीव कि मोमेंटम इज समथिंग दैट फंडामेंटल इन्वेस्टर शुड बी कॉन्शियस ऑफ. ऐसा नहीं है कि उसे क्वांट की तरह यूज करना है, बट अगर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है उसे एक बार चेक कर लें कि वेदर इट इज समथिंग दैट some interesting thing has happened there. Right. और अगर कुछ नेगेटिव मोमेंटम में है तो बी अ लिटिल कॉशियस. अगर आपको कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग भी करना है तो भी वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम काम करता है और लॉन्ग टर्म में रिवर्सल. तो ऐसे जैसे मैंने कहा कि अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड जब कंपनी जाती है वहां से रिवर्सल भी आता है, और जैसे ही कंपनी ओवर वैल्यूड टू अंडर वैल्यूड आती है डाउनवर्ड मोमेंटम में, उसमें भी रिवर्सल आता है. तो यूज दीज आइडियाज to increase your coverage of companies and check whether this is working for you or not. Oh, that's great. That's something really amazing answer, sir. निमिष सर, एक और इशू है कि फियर और अनसर्टेनिटी का, कि मैं मेरा हार्ड एंड कैपिटल जो है वो लूज करूंगा. ये बहुत पावरफुल वर्ड है. ये आइदर बिजनेस हो, इन्वेस्टिंग हो, दोनों में अप्लाई होता है. सो आई फील द बिग रीजन व्हाई इंडिया इज स्टिल अंडर इन्वेस्टेड बिकॉज ऑफ फियर और यू कैन से द परसेप्शन कि ये यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है. एंड दैट इज द रीजन प्रोबब्ली जहाँ पे डेवलप्ड मार्केट में 55% और 60% पीपल आर इन्वेस्टेड इनटू इंडिया, into the market. Probably India is having only 2%, 2.5% that way, right? So what is your take on this perception of risk or the fear factor कि बाजार में हमारा पैसा पूरा डूब जाएगा, and that is how the biggest chunk of the Indian population is not yet invested into the market, and how you can really even encourage the people to come into this market with your powerful words. Yes sir. So you are right. सबसे strong अगर हो तो वो है fear. Yeah. And people do react immediately. Yeah. पैनिक कर जाओगे, you will react instantly. आप ज़्यादा सोचने के लिए वेट नहीं करते. This is a very instant reaction that body and mind gives, and it's a very powerful emotion. जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ. September 11, 2001 में there was the Twin Towers में अटैक हुआ था. Yes. The terrorists had crashed the airplanes there. Yes, yes. अभी उसके बाद it was a big tragedy, no doubt. उसके बाद लोगों को एक एयरप्लेन में जाने का एक फियर सा हो गया था, स्पेशली इन यूएस. लोग एक्चुअली कार से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे एंड एयरलाइंस को अवॉइड करते थे. कुछ साल ऐसा रहा 2001 के बाद. एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा कि दे आर अवॉइडिंग अ बिग रिस्क. बट अभी जो ट्विन टावर्स में जो प्लेन्स क्रैश हुए उसमें सब क्रू मेंबर्स मिला के 246 पीपल थे. बट बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस कार ट्रैवल बढ़ गया, उसके लिए रोड एक्सीडेंट में डेथ्स वेंट अप बाय 1600. My God. 6 times more, right, from what people were anticipating in air travel. Actually. So fear की वजह से अभी at that time कोई लॉजिक काम नहीं करेगा. किसी को बोलो कि नहीं एयरलाइन ट्रैवल इज सेफर, यू गो देयर, नो लॉजिक विल वर्क. Actually. Same way इक्विटी मार्केट्स में a lot of people fear कि क्रैश हो जाएगा मार्केट. एंड देखो 2009 में क्रैश हुआ था, या 2018 में 2020 में पेंडेमिक की वजह से क्रैश हुआ था. Right. अब लोग वो 20-30% क्रैश से डर के इन्वेस्ट नहीं करते. Right. बट ये जो 5-6% रेगुलर इन्फ्लेशन चल रहा है, Right. जिसमें उनकी सेविंग्स ऑलरेडी कट होती जा रही हैं, उससे वो डर नहीं लगता उनको. तो फियर इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. बट गलत चीजों के बारे में अगर आपको फियर हो, और ऑन द ऑपोजिट साइड कुछ ऐसी चीजों के बारे में आप डरते नहीं हो बट विच आर डेंजरस, देन इट लीड्स टू रॉन्ग डिसीजन मेकिंग. Actually. टू कंट्रोल फियर इज डिफिकल्ट. बट आप क्या कर सकते हो कि आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ प्री कमिटमेंट्स डाल सकते हैं. Right. जैसे कि अगर मैंने एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो बनाया है और उसमें मैंने एक कंडीशन रखी हुई है
कि suppose right now I'm 50-50 in equity and debt. I'm just taking an example. अगर मार्केट 10% करेक्ट होती है तो मैं 10% मूव कर लूंगा फ्रॉम डेट टू इक्विटी, सपोजिंग दिस इज माय रूल. अगर वो मैंने ऑलरेडी रूल बना के रखा हुआ है तो जब मार्केट 10% क्रैश होगी और अगर मैं डर रहा हूं, दैट विल नॉट स्टॉप माय इन्वेस्टमेंट. ओनली व्हेन यू आर एबल टू कॉन्कर फियर एंड आर एबल टू इन्वेस्ट व्हेन अदर्स आर फियरफुल, दैट्स व्हेन यू मेक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हेन यू मेक द बेस्ट मनी. The same way, agar when you are taking any decision, one, you should not be in fear when you are taking decisions. Typically agar koi bhi decision lena ho aur aapko dar lag raha ho, you are panicking, close the computer and laptop and go for a walk for a few minutes. Okay, best. And otherwise niche jaake from the building call any of your good friends who are good investment minds. उनको पूछ लो, एक्सपीरियंस पीपल को पूछ लो, या आपके जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात कर लें. एक बार जो दिल जोरों से धड़क रहा है वो थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद डिसीजन लीजिए. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब पैनिक में आपको डर लग रहा हो और आप कुछ बेचना चाहते हो, लॉजिकल थिंकिंग के बाद आपको ऐसा लगे कि अब तो खरीदना चाहिए एक्चुअली. सो आई थिंक फियर राइट कीपिंग के बारे में होना चाहिए. Asset allocation, pre-commitments, or having a good network of people, na, it will help you overcome fear. Wow, great, amazing. Matlab, sir, believe me, this answer is really going to open a lot of preconceptions of the people, rather, I would say. So, sir, we have 4 more questions regarding again the interesting questions. But before that, head of equity Canara Robeco को मिले और हम लोग आज के बाजार की बात ना करें तो हो नहीं सकता. So, sir, your take on present market at this point of time? So, see, according to me, ये bull market जो है, that is likely to continue. I don't see any sign कि ये bull market खत्म हो जाएगा. There will be corrections. Corrections are part of a bull market, तो वो होने हैं. अब काफी जो इन्वेस्टर्स हैं वो मुझे पूछते हैं कि अभी करेक्शन आएगा तो थोड़ा पैसा निकाल लें फिर डाल देंगे. Well, this is very difficult for anybody. Even people who are reading every day, like trends and all that, it's very difficult to say कि अब correction ये level से आएगा और यहाँ पे bottom बनेगी उसकी. तो if you are trying to time this correction, you need 2 right decisions. एक तो आपको right level पे बेचना है और फिर again right level पे enter करना है. I have found कि एक accurate decision लेना भी बहुत difficult है. तो 2 लेने में you will need a lot of luck in your side. Otherwise you will miss the rally. तो I think corrections से को time करने के बजाय corrections को use करना चाहिए. अगर correction आता है, as I said, move your asset allocation in such a way that you can take care of that correction. The other part that अभी लोग worry कर रहे हैं about interest rates कि अभी liquidity worldwide बहुत अच्छी liquidity है, central banks ने rates नीचे रखे हुए हैं. अब तो US फेडरल रिजर्व भी बोल रही है कि टेपरिंग करेगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, तो इस वजह से इक्विटी मार्केट्स गिरेंगे. नाउ दिस इज आल्सो अ लिटिल अनफाउंडेड कि जो वरी है इतनी. अब सारे जो बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं ग्लोबली वो इस कोशिश में है कि इकोनॉमीज जो हैं वो पेंडेमिक के बाद अच्छी ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पे आ जाए कि उसके बाद हमें ग्रोथ की चिंता ना करनी पड़े. तो उनके पास 1-2 ही टूल्स हैं, जो एक फिस्कल स्टिमुलस कर दिया, एक मॉनेटरी स्टिमुलस, लिक्विडिटी दे दी, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया. अब अगर वो ये डिसीजन ले रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, दैट मींस उन्होंने अपना स्टैंप लगा दिया आपके क्वेश्चन पे कि इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा कि नहीं. उन्होंने कहा यस आएगा, इसीलिए मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा. तो अब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इस नतीजे से खुश होने चाहिए या दुखी होने चाहिए कि ग्रोथ आ रहा है, राइट? तो हाँ, इफ यू वरी कि सेंट्रल बैंक समझ रही है ग्रोथ आ रहा है और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रही है मगर वो गलत है कि ग्रोथ नहीं आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. बट अगर ऑल द सेंट्रल बैंक्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज कि ग्रोथ आ गई है वापस, सस्टेनेबल ग्रोथ आ गई है, तो देन इंटरेस्ट रेट हाइक से डरना इज आई थिंक अनवारंटेड. और थर्ड जो पार्ट वैल्यूएशन की लोग सोच रहे हैं, अभी मैं क्विकली आपको बता दूं, निफ्टी बिफोर द पेंडेमिक जनवरी 2020 में निफ्टी वाज एट 12,500. अभी हम अप्रोक्सीमेटली 16,000 पे हैं, तो 30% का अपमूव आया है. इन 1.5 years
उसमें 15% जो ग्रोथ है अर्निंग से जस्टिफाइड है, क्योंकि FY20 में निफ्टी अर्निंग्स हैव गॉन अप बाय 15%. So आधा जस्टिफाइड बाय अर्निंग्स ग्रोथ, आधा इज एक्सपेक्टेशंस बिकॉज वैल्यूएशन जो री-रेटिंग हुई है. In this year and next year, Nifty earnings growth will be 30% approximately and 16%. तो ऐसे ग्रोथ पे, ऐसी हाई ग्रोथ पे 15% re-rating is fine. It does not make it very expensive. The other thing is, लोग कंपेयर करते हैं कि लास्ट टाइम निफ्टी ने बॉटम 12 PE पे बनाया था और प्राइस टू अर्निंग 24 बाद में उनका हाई था, तो हमें 19 पे हैं अब हम एट FY23 बेसिस, तो हाई हो गया. बट ये डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते. हाँ, कुछ कंपनीज हैं जो एक्सपेंसिव हैं, बट निफ्टी 19 PE जो आज है वो लास्ट डेकेड के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि लास्ट डेकेड में कुछ ऐसी कंपनीज थी, सिक्लिकल कंपनीज थी, कमोडिटी कंपनीज थी, पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, जिनको टिपिकली वैल्यूएशन कम मिलता है. तो उस टाइम के जो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, उस समय उनकी रेंज ये जस्टिफाइड थी. अगर आज कंज्यूमर कंपनीज हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरीज हैं, उसमें हायर लेवल ऑफ निफ्टी वैल्यूएशन कैन बी जस्टिफाइड बिकॉज वो बिजनेसेस उस किस्म के हैं. तो आई वुड से करेक्शन, यस, इट कैन कम एनी टाइम, बट I don't think we are fearing another crisis or bear market, and we should not worry about these few things that I spoke about, interest rates or corrections or anything that considering valuation. Use it, move your money accordingly. एक discipline बना के रखिए कि इस level पे या इस valuation पे I'll move in the money. That is how you should do it. So to summarize this question, this answer is basically we are into the okay valuation zone. It is not even expensive, not even undervalued, but yes, we certainly can take the call by having some systematic transfer plans or something like that, right? More or less. Right. Great, sir. So thank you very much. So again, sir, coming to the very interesting question. So Nimish sir, right from the Homo sapiens till date, हम पूरी दुनिया या thought process ये पूरी एक पैटर्न पे चलती है. Right, and that is how actually in all walk of life, either it's a personal or the professional, even in the financial market also there are the patterns, right? And every time we constantly look for the patterns कि ये हो गया तो ऐसा होगा, वो हो गया तो वैसा हो गया, जिंदगी में 4 बार हुआ तो ये 5वीं बार भी ऐसा होगा. It is something like that. So your advice for the investors that how to get the most profits of that strong human behavioral pattern, that is pattern behavior one, and how to get rid of this misconception of chance in the market कि नहीं ये ऐसा हुआ तो ऐसा होने वाला है, and then you are having the left out feeling also at the same time, right? So I found your amazing answer on this. So the very interesting point, Deep ji. So let me put it this way कि there are 2-3 things about human origins जो from the time we were cavemen, तभी हम हंटर्स थे, फिर बाद में फार्मर्स बने. हर चीज में वी हैड टू प्रेडिक्ट समथिंग, तो उसके लिए हम पैटर्न्स देखते थे. जैसे फार्मिंग के लिए हम वेदर की पैटर्न्स देखते हैं कि बारिश कब होने वाली है, उस हिसाब से हम अपनी सोइंग करें. फिर बाद में हार्वेस्टिंग टाइम आल्सो डिपेंडिंग ऑन मॉनसून सीजन कब खत्म होती है. जब हंटिंग के लिए जाते थे तो एनिमल्स के पैटर्न देखने पड़ते थे कि किस समय वो तालाब की तरफ आते हैं, किस समय हमें अच्छे हंटिंग हो सकती है. तो ह्यूमन बीइंग्स को एक हुआ है. बट जब हम साइंस से साइकोलॉजी पे आते हैं, राइट, जो फिजिकल साइंस है उसके बाद अगर साइकोलॉजी पे आते हैं, तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स. जो सिंपल चीजें हैं कि यही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और केमिस्ट्री और समथिंग, जब आप साइकोलॉजी की तरफ आते हो तो इट डजंट हैपन एग्जैक्टली लाइक दैट. तो उसमें मेनी अ टाइम्स कुछ रैंडम या कुछ चांस से कुछ इवेंट हो जाता है और मूव आता है, तो हम उसमें पैटर्न ढूंढने लगते हैं. तो ये तो ऐसा हो गया कि हमने दीवार पे 3-4 गोलियां मार दी और फिर जाके बुलजाय बना दिया कि देखो ये रहा हमारा बुलजाय. तो इट इज व्हाट इट इज कॉल्ड अ टेक्सास शार्प शूटर बायस, कि हमने वो पहले एग्जीक्यूट कर दिया, फिर उसमें हम लोग डिजाइन बना के ढूंढने का देखो ये पैटर्न है इसमें. The same thing happened जब हम वो रूलेट खेलते हैं. तो in Monte Carlo in 1913 एक मोंटे कार्लो के कैसीनो में people used to bet on red या black, 2 तरह के कलर्स उसमें नंबर्स होते हैं, तो लोग रेड और ब्लैक पे बेट करते रहते हैं.
तो लोग पैटर्न बनाते हैं कि अगर अभी बॉल रेड पे गया है तो नेक्स्ट ब्लैक पे आएगा, क्योंकि एवरेज वाइज इट शुड बी 50-50. So then people kept betting on that. 26 बार continuously the ball went on black. 26 बार. So millions that day. That was happened one day in 1913. Okay. तो इसमें क्या हुआ? Now think about it कि वो जो बॉल घूम रहा है रूलेट उस पे टेबल पे, उसे तो नहीं पता कि लास्ट में ब्लैक में गया तो अब मुझे रेड में जाना है, राइट? इट हैपेंस आउट ऑफ चांस एनी टाइम. So many things in life are, and in market especially, are random and based on chance. उसमें patterns बना के we are fooled by randomness, as Nassim Taleb has written in his book. तो it is better कि अगर हम कुछ patterns ढूंढना चाहते हैं तो first look at longer term rather than look at very short term. Otherwise we'll be fooled. कि अगर अभी हम देखें कि lot of people track कि foreign investors buy या sell कर रहे हैं market. अब अगर कुछ दिन कुछ नेगेटिव नंबर आ गया तो वो डर जाते हैं कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट फेथ इन द इंडियन मार्केट और निकल रहे हैं सब साथ में. And that will be the so now that will be even the headline of the paper also. Exactly. So वो क्या होता है कि now you saw very short pattern और फिर आपने सोचा कि like you know everything has changed. ऐसा नहीं है. You have to look at longer term averages and then see whether what you are suggesting, what your theory you are trying कि ये pattern है वो relevant है या नहीं. Second, वो logical भी होना चाहिए. So right. Like one of my friends had sent me a chart कि देखो crude oil ऊपर जाता है ना तो सेंसेक्स ऊपर जाता है. No, fundamentally तो opposite है. Opposite है. We are oil importers. अगर crude price ऊपर जा रहा है, हमारा current account deficit बढ़ेगा, inflation बढ़ेगा, तो that is not positive for India. तो just because दो वेरिएबल साथ चल रहे हैं doesn't mean कि it works. इसलिए मैंने उन्हें, मेरे जो फ्रेंड है उनको सामने मैंने और एक चार्ट भेजा था कैलिफोर्निया के ऑरेंज जूस फ्यूचर्स और सेंसेक्स. मैंने उन्हें कहा देखो ऑरेंज जूस फ्यूचर्स ऊपर जाते हैं तो सेंसेक्स. So now there is no क्या कहते हैं cause and effect relationship within them. Many a times certain variables move together क्योंकि शायद globally liquidity is moving into commodities and emerging markets, so साथ में होता है. But if you want to test these theories, I would suggest कि एक बार आप mock test करके देखें. See it on paper whether such patterns work or no. If you find a good pattern, then you can invest accordingly. But many a times we are fooled if we take very short-term numbers. We only look at without logic को अगर कोई हम variables join करना चाहते हैं, तो that doesn't work. I'll tell you one more example, which was somebody had told me कि year 1998 में कुछ crisis आई थी, 2008 में क्राइसिस आएगी, तो 2018 में भी क्राइसिस आएगी. दिस वाज आई वाज टोल्ड इन 2017 कि आप डर बच के रहना. मैंने उसे कहा कि ऐसे तो कोई भी आप 2-3 वेरिएबल ज्वाइन करके बता सकते हो कि ये साल में क्राइसिस होगी. तो एंड आई पॉइंटेड टू हिम कि 98 में कोई क्राइसिस नहीं थी एक्चुअली. द क्राइसिस हैपेंड इन 2001 when the markets crashed in the year 2000 and 2001. Actually पहले तो कुछ हुआ नहीं था. तो मैंने उसके बाद एक तो आपके डेटा पॉइंट गलत है, एंड सेकंड कोई भी डेटा पॉइंट दो डॉट बना के एक लाइन बना दी, that is not pattern recognition actually. Okay, there where we are getting fooled. So great. So misconception को carry नहीं करना, and let's not get into the trap of patterns, as simple as it is. So now a very interesting question regarding the gender and why, because and I believe that to whomsoever is listening this, even the most of the decisions in the investments getting done by, मतलब बहुत सारे decision जो है वो male हमारे society में लेते हैं और most of the female नहीं लेती है. लेकिन coming to this particular question is कि gender participation also in the global investment arena is mostly by again male, right? तो on the contrary, लेकिन इसमें एक अलग contrary चीज है कि females are more stable. Females are more clear what they want to do, and they're even the multitasker also, right? So, and investing is basically again the basically choice and you can say the behavior of the having the stability into the brain, right? So my your take on how and what corrective measures we all need to take, including all the males those are investing, to increase the participation of females, and how even by having this stable mindset, even the profits will also going to get increase in the portfolio. So your takes are on this. Again a very interesting area. So पहले तो मैं कान पकड़ के सबको ये बोल देता हूँ कि I am not stereotyping men or women, but I am just giving the observations that are there in different studies. So right. I don't want to stereotype. Not all men are same, not all women are same. Right.
बट जो पैटर्न्स हैं जनरली आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली ऑल्सो men are supposed to be more aggressive, yani men are from Mars was considered to be the Roman god of war, right. और जो men का जो symbol है जो arrow करके है, that comes from Mars. Yeah. So that is Mars is also called Thoros, और Thoros को एक particular way में लिखा जाता था, right. जिससे men का symbol आया. Right. And Venus, women are considered to be from Venus, as people say कि Venus is the goddess of beauty and grace. Yeah. So women are considered to be light bearers, more graceful. Men are considered to be aggressive and warriors. Warriors, yes. Abhi those characteristics na somehow are seen in the stock markets also. So when there were certain studies done about men and women behavior, men tend to be over trading. Okay, both are trading more, women and men in the markets, and both lose if they trade more. But men seem to be more overconfident, and their trading is much more than women. Women, because they trade a little less, their returns are generally better than men on a net kind of basis. So I encourage actually a lot of women to participate in equities, not as a trader, but as an investor. Right. Now, on the other side, men are very good at stock picking. Right. They do a lot of rigorous research and they pick good stocks. So, इनके जो gross returns होते हैं men के are better. They also take more risk. So, small caps में men would invest very easily. Women would take a little more cautious stance on that. On the other side, women are open to suggestions, whereas men so much are not. So उन्होंने एक बार अपना mind बना लिया तो बना लिया. Women are more open to suggestions, so they are able to like benefit from the advice and suggestions from people. Right. And typically, both men and women have certain characteristics which help them do better in the markets, and some characteristics that lead to losses. Now, the best thing is to have a combination of qualities of Mars and Venus on Earth. Okay, where you you don't trade too much. Right. Okay, rigorous research, doing your own research is very valuable, and that you can take from Mars side. And confidence is what you can take from Mars side. On the other side, you can take lower turnover, like listening to advice, keeping a stop loss, and being a little cautiously optimistic from the women's side. If that combination is there, then I think we do better. Also, there was this very path-breaking research a few years back where somebody compared and showed that there is no difference between a man's brain and a woman's brain. In structure, there is no difference, which means a lot of difference in behavior is because of the upbringing, the way a girl child or a way a boy child is raised. And again, I'm not generalizing, but there can be a difference because of that. Right. Now, that is actually a good hope for us, that if it is not because of nature and because of nurture, then good investors can come from any side, whether women or men. So both can be fantastic investors in the markets. Right, sir. So thank you very much for this amazing words for every single female, because at least in our country, let's have some more participation that way. Anyway, sir, another very important question is basically intuition is one of the most powerful human behavior, and so many people have the intuitions on so many different incidences, right, of the market. Now, how to control this intuition in the correction mode of the market, and how to get it done or get enter into the market when the market is absolutely cheap. जैसे कि अभी 2020 में था, you can say the market capital, you can say the market capital GDP ratio is around 52, right? That will coming to the buy mode in that kind of market. जबकि होता बिल्कुल इसके उल्टा है. So can you please brief that taking this decision to close eyes की कैसे करना चाहिए, and how this answer I'm sure that will help out to so many people to take the decision into that intuition वाला behavior जो उसको थोड़ा सा address करने के लिए. So intuition दो तरह के broadly होते हैं. एक होता है हमारा जो regular intuition, and second is expert intuition. Regular intuition जैसे अगर my wife अभी मुझे फोन करे तो उसकी हेलो से मैं समझ जाऊंगा कि उसका मूड क्या है और घर पे क्या हुआ है, राइट? सो दैट इज अ यूनिक इंट्यूशन दैट मेन हैव व्हेन दे टॉक टू देयर वाइफ, एटलीस्ट आफ्टर मैरिज. तो वो एक तरह का इंट्यूशन है. सेकंड इज एक्सपर्ट इंट्यूशन, वेयर आप किसी चीज में, आप एक प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आपने
इतने सारे साइकिल्स, इतने सारे इंसिडेंट्स देखे हुए हैं मार्केट में कि आप एक इंट्यूटिव कॉल ले सकते हैं कि ये इस तरह से हो सकता है, लाइक ना देयर इज अ गुड चांस के यहाँ से बुल मार्केट होगा, बेयर मार्केट होगा और समथिंग लाइक दैट. नाउ लाइक फॉर एग्जांपल देखें कि अगर कोई डॉक्टर हैं, अगर इतने सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, सालों से चेकअप कर रहे हैं उनका, समटाइम्स वो पेशेंट जैसे intuition that comes in, to use your intuition is कि आप पहले सारे फैक्ट्स और डिटेल स्टडी कर लें, उसके बाद इंट्यूशन. जैसे ये डैनियल कैनेमन ने, जो नोबेल विनर है, he was the first psychologist to get a Nobel economics. So he has given a method कि वो जब आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट के फॉर्म्स वो सब देख रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जो इंटरव्यूअर है, अगर वो इमीडिएटली अपने इंट्यूशन पे रेटिंग दे देता है कैंडिडेट को कि ये अच्छा करेगा या नहीं, तो देन दे वर नॉट एक्यूरेट. बट इफ दे कलेक्टेड ऑल द डेटा, उसके जो रेज्यूमे, सीवीज देख लिए, ट्रैक रिकॉर्ड्स देख लिए, परफॉर्मेंसेस देख लिए, सब नंबर्स एनालाइज कर लिए, जो डेटा उनको चाहिए, कैंडिडेट को क्वेश्चन पूछ के वो डेटा ले लिया, उसके बाद इफ दे क्लोज देयर आईज और उन्होंने कोई रेटिंग दी है based on their intuition, that work better. Which means if you are taking enough data, research, and on top of that you use your expert intuition, means your experience in taking a call, that is works better rather than कि immediately आपने impression form कर लिया कि देखो ये सही है, ये गलत है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा. That doesn't work. Do your study. So many a times अगर आपको you have an intuition that something is going wrong in the markets or something, first collect all the data. Wow. And see what is it that is going wrong, why do you feel so, and then take a decision, whether an intuitive decision if you want, whether this is right or wrong. मेरे हिसाब से if you keep certain checklist before taking any call on investing or divesting, I will check these few points and only then take a decision, then it works better rather than just on intuition. Amazing. Probably ये आपके आंसर से बहुत लोगों के टेम्पटेशन जो है अभी एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन हो जाएंगे. So thank you very much. This really amazing. Sir, again, like last but not least, a very important question, and I'm actually connecting two different questions with one single question. So success in the investing is just like a diet plan, and one can really learn how to draw up that fantastic high return proven strategy on a paper. और फिर उसमें biggest challenge जो है is either my habit or discipline and how the value investing is working. मुझे कैसे उसको adopt करना चाहिए. Rather, I would say that how and what kind of steps one need to take to really connect those dots and even connecting the value investing in the life. Your take on that, and even I want you to give a little bit of more emphasis on how exactly one has to look at the value investing in their life or in their investing portfolio rather. Yes, sir. Again, very interesting questions. So I'll split it into two parts. Yeah. First, जितने भी, as I said, successful investors रहे हैं, yeah, they have good control on their emotions. Wow. And they have been able to take better decisions because of that. Right. And all this ultimately, control on emotions lead to what is called discipline. अगर आपने एक पेपर पे डाइट प्लान बना दिया कि मैं बस कल से मुझे डाइटिंग करना है, so that I am fitter, बट वो पेपर पे ही रहा प्लान, आपने कभी उसको डिसिप्लिन से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, so then it will not work. No matter how hard you try, every few days if you try doing a diet, it will not work. You have to do it in a consistent way, in a longer term. Right. Now the same thing goes with investment also. You have to be disciplined in the way you invest, तो ही आप better returns बना पाओगे. And all of us want to create wealth from this, much better than what the index can give us, much better than like what any other asset can give us. Actually. So discipline is the most important. It will test you for some time, but it will work. Now when it comes to value investing is, मेरे हिसाब से the origin was 100 years back, and मेरे हिसाब से it is still relevant today. 1920s में बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड ने वैल्यू इन्वेस्टिंग एज अ कॉन्सेप्ट निकाला था. तब लोग
काफी मार्केट को टाइमिंग और चेस स्टॉक प्राइसेस को चेस करने में लगे हुए थे, उन्होंने कहा एक वैल्यू इन्वेस्टर को, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ये सब करने की जरूरत नहीं है, फॉरगेट मार्केट टाइमिंग, हर सिक्योरिटी का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, ट्रू वैल्यू होता है, अगर मार्केट प्राइस उसके नीचे है आप बाय कर लो, अगर उसके ऊपर है तो आप बेच दो। नाउ दिस हैज 2-3 डिफरेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन इट कि एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमिन करनी है which takes into account everything about a company, not just assets or earnings, उसकी फ्यूचर ग्रोथ भी है, बट ऐसी ग्रोथ जो हम प्रेडिक्ट कर पाए, which is easy to predict. होप्स पे नहीं करना है कि हाँ ये 10 साल तक आई एम श्योर ये बिजनेस चलता रहेगा, नहीं, व्हाट इज द इंडस्ट्री ग्रोथ एंड इफ आई गो रॉन्ग तो क्या होता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने बना दी। सेकंड, आई कीप अ गुड मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि अगर मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 आ रही है, प्राइस इज 90, तो मैं इमीडिएटली नहीं जाऊंगा, 10% तो मैं गलत हो सकता हूँ, तो what I'll do is I'll keep a higher margin of safety. अगर 70 के नीचे मिले for example, then I will buy this company and keep so that I have adequate margin in case I go wrong in my estimate. So 100 का 90 भी अगर आ गया तो भी मेरे पैसे बनेंगे. Right. The third thing is looking at taking advantage of crowd psychology. As I said कि market many times क्या होता है, एक euphoria में एक सेक्टर को या किसी कंपनी को बहुत हाई वैल्यूएशन पे लेके जाता है, at the same time कुछ कंपनियां अच्छी कर रही हैं उन पे ध्यान नहीं देते, which is like we spoke about momentum and under reaction at that time. तो वैल्यू इन्वेस्टर क्राउड की जो साइकोलॉजी है, as they move between panic and euphoria, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग टेक्स एडवांटेज ऑफ इट. इट टेक्स इनटू अकाउंट कि मार्केट हमेशा एफिशिएंट नहीं रहती, एवरी स्टॉक प्राइस विल नॉट बी एट इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू. तो ऐसे एरिया में जाके हम फिशिंग करें जहां फिश ज्यादा है, जहां पे हमें अच्छे वैल्यूज मिले, एंड वी बाय दैट. So value investing, lot of people think कि low price to earning है, low price to book है, तो ले लो, business कैसा भी हो चलेगा. नहीं, ऐसा नहीं है, right? You don't buy the cheapest companies, okay? कुछ companies cheap रहेंगी, उनके या तो business अच्छे नहीं हैं, they may be a bankrupt company also, but अच्छी companies भी अगर हम intrinsic value से थोड़ा नीचे लें with a good margin of safety, value investing is more like common sense investing. It will keep giving you good returns. You will have to be a little patient. बिकॉज शॉर्ट टर्म में अगर कंपनी कुछ गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स, इसीलिए आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है. एट इन द लॉन्गर टर्म द सेम मार्केट प्राइस विल गो मूव टुवर्ड्स इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, मे बी बियॉन्ड आल्सो. अमेजिंग. So sir, it was मतलब probably मैंने जितने 115 वीडियोस बनाए, I'm sure that this is one of the best I've ever come across, and I really learned lot many things, and I'm sure that even the investors will going to come across so many good things today. What is first important thing which you said is a stoic investor, be a very balanced, very good and disciplined investor, so that you can really be balanced and you will be able to control your emotions that way. That is the first thing which the people really have to understand. You really narrated theory of momentum very well. I'm sure that anybody who is going to see this question of your answer, he will going to make sure that how really he has to control his momentums and he really adopt that particular theory. अपने फियर को बहुत अच्छे से समझाया लोगों को, तो लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाउ टू रियली कंट्रोल द फियर्स एंड एक्सपेक्टेशंस आल्सो, और द परसेप्शन ऑफ रिस्क क्या होता है वो आपने बहुत अच्छे से बोला है. आपने आज के बाजार की भी बात करी है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मैटर, बिकॉज एक हेड ऑफ इक्विटी को हम लोग बिना उसके तो छोड़ नहीं सकते. Even you said very nicely about the difference of male and female and how both can be amazing. A combination of these two can be really amazing stuff. And temptation को कैसे कंट्रोल करना है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग हमने बहुत अच्छे से बताया. I'm sure that this will be the one of the fantastic asset of even Imperial Money. And ये मतलब this is a kind of interview I believe जो कभी भी कोई भी किसी भी पॉइंट पे उठा के देख सकता है. This is something आपने पिछले 100-200 सालों का जो तजुर्बा है उसको आपने पिछले 1 घंटे में ऐड किया है. So I am very happy and thank you very much sir for such a great insight and such a deeper rooted insight from you, and that is why I believe that this is the success of Canara Robeco forward. आपने पूरी कंपनी को इस लेवल तक पहुंचा दिया. Thank you very much sir to be on a show. Thank you. Thank you Deep जी. In fact आपके questions बहुत ही interesting रहे हैं. Not many people read and are interested in these areas, so I really enjoyed this conversation क्योंकि आपने अच्छे से हर चीज पे like you had a good view and a positive view, and आपके questions काफी interesting रहे हैं. At Canara Robeco our effort is to give the best kind of returns and best kind of advice to our investors, and frankly it's not just me but my whole team has delivered good returns to our investors. So credit doesn't go to me, it's to my team.
And thank you very much. I thoroughly enjoyed this conversation. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.